Everyone, this is Pooja Avasthi Shukla from KB Lamacon, Imphal number 3. This is the fourth and last part of the video of chapter number 1, Bricks, Beats and Bones, that is the Harappan civilization. In the last or third part of video, I have covered the chapter till the topic seals, weights and scripts, and here I will start with the new topic. The topic is the ancient authority. The ancient authority in the Harappan civilization means हम कह सकते हैं as we have read that it was a big civilization, so there must be any authority or any king which regulated the society. So it is believed that complex decisions were taken and implemented in the Harappan society. This is proved by the following arguments. Means बहुत सारे complex decision क्या हैं, जैसे कि as much places as we have found till today, तो जो उनका structure है it is same, like the structure is almost everywhere divided in two parts in citadel and the lower town, and drainage system is there, same type of bricks are there, and same type of pottery has been found from there. So these type of complex decisions were taken and implemented in Harappan society. So this argument जो है ये it is fulfilled by two reasons. First, there is uniformity in the production of bricks, pottery, weights and seals. जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि जो प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स है, लाइक पूरा जितने भी ब्रिक्स फाइंड आउट किए जाते हैं फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड ऑफ द हरप्पन टिल द साउथर्न पार्ट, तो जो भी है वो सब सेम साइज सिमिलर रेशियो के हमें मिलते हैं. पॉटरी हैं, जो वेट्स एंड सील्स हैं, दैट आर स्टिल सिमिलर फ्रॉम होल द पार्ट ऑफ civilization. And second reason is behind it, although the above materials were produced at different places, they were of uniform ratio throughout the region from Jammu and Kashmir to Gujarat. तो जैसा अभी मैंने आपको पहले बताया, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के टिल गुजरात हमें सेम रेशियो में सारी चीज़ें मिलती हैं. तो कैन इट बी पॉसिबल विदाउट हैविंग एनी किंग? सो लेट अस डिस्कस. द क्वेश्चन इज हु ऑर्गेनाइज्ड दीज एक्टिविटीज़. मीन्स कोई ना कोई तो रहा होगा जो सेम एक्टिविटीज़ सब जगह हमें मिली हैं. वॉज देयर अ सेंट्रल अथॉरिटी हु डिसाइडेड ऑल इम्पोर्टेंट इशू? तो मीन्स क्या कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ पर रह रही थी जो मीन्स जो ये सब रेगुलेट करती थी? वी हैव नो आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. वाई वी हैव नो आंसर्स? बिकॉज जैसा पहले बार बार मैंने इस वीडियो में बोला हुआ है कि द स्क्रिप्ट दैट हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन इट इज़ स्टिल अनडिसाइफर्ड. हमने पढ़ा नहीं है तो हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में उस सिविलाइजेशन में कुछ ऐसा था कि नहीं था, लाइक एंशिएंट अथॉरिटी थी या नहीं थी. तो देयर आर थ्री मेजर व्यूज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ a central authority in the Harappan society. So three major views has been given according to the researches of historians. First one is, some archaeologists are of the opinion that there was no rulers in the Harappan society and that everybody enjoyed equal status. So some says that there was no rulers. कोई ruler नहीं था Harappan society में, and everybody was free and they enjoyed the equal status. But others are of the opinion that there was no single ruler but several rulers. Means because इतनी बड़ी civilization है, इतने broader area में उसका expand है, तो there will not be any single ruler but the several rulers. Many rulers would be there. मोहनजोदारो had a separate ruler, Harappa had separate, and so on. सबका अलग अलग ruler रहा होगा, and that ruler might have implemented these decisions. And the third argument suggests that there was a single state. Means थर्ड आर्गुमेंट बोलता है कि
देर वॉज अ सिंगल स्टेट, मीन्स पूरी सिविलाइजेशन जो थी वो पूरा एक सिंगल स्टेट थी. तो दिस थियरी वॉज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, प्लांट सेटलमेंट्स एट्सेट्रा. हाउ कैन वी से कि एक सिंगल स्टेट पर बेस्ड थी? बिकॉज बिकॉज जो सेटलमेंट्स हैं वहाँ के वो प्लांट सेटलमेंट्स हैं. जिस भी तरीके के मुझे आर्टिफैक्ट्स हमें वहाँ से मिले हैं, दैट आर सिमिलर आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम ऑल द प्लेसेस ऑफ द हरप्पन. साइज ऑफ ब्रिक्स, पॉटरी, everything is common. Almost everything is common. The last opinion considered being more plausible, as it is doubtful that such complex decisions were made and implemented collectively by entire communities. Means we can consider the last opinion मच बेटर, बिकॉज इतनी बड़ी सिविलाइजेशन में अगर अलग अलग रूलर रहे होंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट same decisions on all over the civilization or all over the society. So lastly we conclude कि there must be any single ruler, but because script decipher नहीं है तो हम कुछ श्योर भी नहीं कर सकते हैं. Here you can see a picture of priest king. The end of the civilization. Our next topic is the end of the civilization. Because civilization end हो गई है, हो चुकी है. That is why we are saying कि कभी ऐसा रहा होगा, कभी ऐसा मिला होगा. ठीक है, तो क्या क्या रीजंस हैं और कैसे सिविलाइजेशन एंड हो गई, लेट्स सी. By 1800 BCE, most of the mature Harappan sites were abandoned. The expansion of population and its migration took place towards Gujarat, Haryana, Western UP, etc. तो बाय 1800 BC, 1800 BC से क्या होता है, जो मच्योर हरप्पन साइट्स हैं लाइक मोहनजोदारो है, हरप्पन है, कालीबंगन है, दीज साइट्स वेर इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस हो रहे थे, मीन्स डाउनफॉल हो रहा था इनका. एंड जो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वेर इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द साउदर्न साइड लाइक गुजरात, हरियाणा, एंड द वेस्टर्न साइड लाइक वेस्टर्न यूपी. आफ्टर 1900 BCE, sites which existed marked the transformation of material culture, like disappearance of distinctive artifacts of civilization like weight, seals, distant trade, etc. Writing, long distance trade, and craft civilization also disappeared. So one way over which we can make an assumption कि कैसे सिविलाइजेशन जो थी वो एंड की ओर जा रही थी. लाइक हमें जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है वो नहीं मिल रहा था, जो वेट्स हैं, सील्स हैं, वो सभी क्या हो रहा था, स्लोली डिसअपियरेंस की ओर मूव हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे. हमें उतने बड़े अमाउंट में नहीं मिले हैं जैसा कि पहले के टाइम पीरियड के मिलते हैं. हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स deteriorated and large public statues were no longer large public structures were no longer produced. तो जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हरप्पन मोहनजोदारो हैं, दैट आर बेस्ड ऑन द प्लान्ड अर्बन सोसाइटी. तो जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं वो भी डाउनफॉल की ओर हो रहे हैं. एंड जो लॉन्ग या लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स हैं लाइक द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो, तो ऐसा कुछ भी बाद में हमें नहीं मिलता है. दिस इंडिकेट्स अ रूरल वे ऑफ लाइफ नेम्ड लेट हरप्पन. तो आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम 1800 BCE, जो हमें रूरल वे ऑफ लाइफ मिलती है, इस तरीके की जो नई सिविलाइजेशन फाउंड आउट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेट हरप्पन civilization. Here we can see some reasons behind the decline of Harappan civilization. First one is climatic change. Means maybe climate में इतना ज़्यादा major change आ गया होगा कि civilization decay हो गई. Second one is deforestation. Third, excessive floods. Maybe flood बहुत ज़्यादा आ गया होगा. So जो major population थी वो मीन्स डेड हो गए होंगे या ख़त्म हो गए.
overuse of landscape, the shifting and drying up of rivers. Like it happens sometimes as river changes its way of flowing, तो मे बी लोगों को पानी नहीं मिल रहा होगा, इसकी वजह से भी सिविलाइजेशन डाउनफॉल होने लगी. Invasion most probably by the Aryans. Harappan state might have ended because there are evidence of absence of distinctive artifacts like seal pottery, etc. तो one famous reason behind this is कि invasion by the Aryans. तो आर्यंस ने इन्वेशन किया होगा, आक्रमण किया होगा, हाँ, ओवर दिस पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन. उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया होगा ये रीजन, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डिके होने लगी. Around 1500 BC, a large group of nomadic people known as the Aryans moved out of their homeland in Central Asia. They moved south into northern India and conquered the Harappan and created a new Indian society based on Aryan culture and institution. Means 1500 BC, around we find out the evidences of the nomadic people called Aryans. तो क्योंकि यहाँ से आर्यंस पीपल के आने का हमें प्रूफ मिलने लगता है, तो दिस वाज द डाउनफॉल ऑफ टाइम ऑफ द डाउनफॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके, तो अभी तक हमने सारा कुछ पढ़ लिया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में. नाउ योर टॉपिक इज कि हाउ दिस सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड, कैसे डिस्कवर किया इस सिविलाइजेशन को. Because till 1924 our history was limited till the Vedic period, but after 1924 एक मेजर चेंज आता है जो कि हमें बताता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो वैदिक पीरियड से स्टार्ट ना होकर के उसके पहले को भी बिलोंग करती है. लेट्स सी. Cunningham was the first Director General of ASI. He was known as the father of Indian archaeology. He began archaeological excavation in the mid-19th century. His main interest was in the archaeology of early historian from 6th century BCE to 4th century CE and later periods. He used the accounts left by the Chinese pilgrims who have visited the subcontinent between the 4th and 7th centuries. He also collected documented and translated inscriptions found during his surveys. Sites like Harappa did not fit well in his area of investigation. तो जो कनिंगम है, he was the first Director General of Archaeological Survey of India. One thing I would like to tell you that when the railway track was, the making of railway track was going on in India from एट लाहौर, तो एट दैट टाइम जो वहाँ पर लेबर्स काम कर रहे थे, वो जो वहाँ से डिगिंग करने पे जो भी रोड बनाते टाइम, ट्रैक बनाते टाइम उनको ब्रिक्स वगैरह मिल रहे थे या डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स मिल रहे थे, वो अपने घरों की ओर ले जा रहे थे. तो जब वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था वहाँ के लोगों ने ध्यान दिया, तो उनको पता चला कि यहाँ कुछ अलग टाइप का है, मतलब कि ये जो भी सामान मिल रहा है वो अब से पहले का है कभी. तो जब उसको उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया, देन दे फाइंड आउट कि ये किसी अदर सिविलाइजेशन को बिलोंग करने वाला प्लेस है. एंड जिस प्लेस की बात कर रहे हैं वो दैट इज़ द प्लेस हड़प्पा, जो कि एक विलेज है पाकिस्तान एरिया में. तो जो कनिंगम है, इन्हें वहाँ से जो कुछ भी मिला, ही कैन नॉट रिलेट दैट थिंग्स विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिकॉज ही वॉज मोस्टली इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री फ्रॉम 6th century BCE to 4th century CE. इस हिस्ट्री में ही वो इंटरेस्टेड थे, एंड उन चीज़ों को उन्होंने इस टाइम पीरियड में प्लेस करने का ट्राई किया, बट ही वॉज फेल बिकॉज वो चीज़ें इस टाइम पीरियड में फिट नहीं बैठ रही थी. Although Harappan artifacts were found during the 19th century and some of these reached Cunningham, but he did not realize how old these were, as they were not part of the Chinese pilgrims
and was not known as early historic city. तो जो भी उनके जो चाइनीज़ अकाउंट थे लाइक वेनसांग वगैरह उनके अकाउंट्स थे, तो उन पे जो भी बातें कही गई थी उस पर ये जो चीज़ें आर्टिफैक्ट्स हमें मिल रहे थे वो फिट नहीं बैठ रही थी। तो कनिंगम बहुत कंफ्यूज थे कि क्या है। देन एन इंग्लिशमैन गेव अ हरप्पन सील टू कनिंगम, but he was unable to place it in the time frame with which he was familiar. मीन्स एक हरप्पन सील भी कनिंगम को मिली, बट वो नहीं समझ पाए कि ये सील जो है वो किस टाइम पीरियड को बिलोंग करती है। ही थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज ऑफ द गंगा वैली, बिकॉज जो उनका मोटिव था, थॉट प्रोसेस था, दैट वाज लिमिटेड कि जो इंडियन हिस्ट्री है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द वैदिक एरा और फ्रॉम द फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली, और यू कैन से फ्रॉम द 1000 BCE. सो इट इज़ अज्यूम दैट ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हरप्पा. तो कनिंगम तो ये नहीं खोज पाए कि हरप्पा प्लेस से जो कुछ भी मिला वो क्या है, किसी नई सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है. Okay, then Dayaram Sahani and Rakhal Das Banerjee found similar seals at Harappa and Mohenjo-daro respectively. तो in 1921 जब दयाराम साहनी डिस्कवर्ड और मेड excavation in Harappan, and in 1922 Rakhal Das Banerjee excavated the Mohenjo-daro. Then the similar seals were found from that place also. तो at that time John Marshall was the Director General of ASI. तो उन्होंने he understood the importance of that two seals and all the things जो कि वहाँ से मिली हुई थी उन प्लेसेस से, उनका इम्पोर्टेंस समझा, एंड ही अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड. तो लास्टली जॉन मार्शल वो रीच्ड टू द कंक्लूजन कि ये जो सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं ये बहुत पुराने किसी एक सिविलाइजेशन को बिलोंग करती हैं, क्योंकि वो सिविलाइजेशन हरप्पा एक गांव से और उस प्लेस से स्टार्ट हुई. दैट इज़ वाई दिस सिविलाइजेशन known as Indus Valley or the Harappan civilization. Marshall tended to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mounds, ignoring stratigraphy of the site. Here you can see the picture of Sir John Marshall and another historian, Sir Mortimer Wheeler. Okay, now come to the next topic, problems faced by archaeologists in the interpretation of religious practices of Harappa. So अभी हमने डिस्कस किया एंशिएंट अथॉरिटी थी या नहीं थी, एंड द सेकेंड टॉपिक वॉज कि हाउ द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड. कैसे आज हमें पता चला कि हरप्पन जैसी भी कोई सिविलाइजेशन थी. Okay, come to this topic. Harappan script is not helpful in understanding the Harappan civilization. The script remains undeciphered till date. Material remains helps the archaeologists to reconstruct the Harappan life. Organic materials such as cloth, leather, wood, and reeds generally decompose, while stone, burnt clay, metal, etc. survive. Materials such as pottery, tools, ornaments, and household objects are available. तो what we are saying here कि जो how archaeologists reconstruct the past, जो भी material remains हमें मिलता है on basis of that archaeologist हैं वो past को reconstruct करते हैं. तो जो like cloth है, leather है, wood है, इस ऐसा जैसा जो भी material रहा होगा वो इतने लंबे टाइम प्रोसेस में वो तो ख़त्म हो गया होगा, ख़राब हो गया होगा. बट जो चीज़ें स्टिकी हैं वो कौन सी हैं, वो स्टोन मेड है, बर्न्ड क्ले से बनी हुई हैं या मेटल से बनी हुई हैं, लाइक पॉटरी है, कोई टूल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, कोई हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं. तो ये जो चीज़ें अवेलेबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स ओनली द हिस्टोरियंस और द आर्कियोलॉजिस्ट रिकन्स्ट्रक्ट द पास्ट. रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल enterprise. Archaeologists then classify their
finds. जब उनको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं then they start classifying the things what they find. तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस कर ली वो क्या है कि क्योंकि स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड है इसलिए हम कुछ कह नहीं पाते हैं एंड हिस्टोरियंस जो हैं वो टोटली क्या कहेंगे कि पूरा डिपेंड करते हैं किस पर, द मटीरियल रिमेन्स. ओके, द सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? द सेकेंड एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इज इन टर्म्स फंक्शन. आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर an artifact is a tool or an ornament or both or something meant for ritual use. Means suppose कोई एक हमें artifact मिला तो archaeologist को ये decide करने में problem आती है कि is it any this is a tool or this is an ornament या फिर वो दोनों के काम में आता है because nothing is sure about that. An understanding of the function of an artifact is often shaped by the resemblance with present day things. Beads, coins, stone blades and pots are obvious example. तो जब भी कुछ मिलता है तो हम प्रेजेंट डे सिनेरियो को देख करके उससे मैच करते हैं. लाइक आज भी हम यूज़ करते हैं कॉइन्स, मीन्स जो फ्लोर मिल्स होती है चक्की जिससे आटा बनाते हैं. अभी भी हम वी वेयर द बीड्स वेयर करते हैं. एंड स्टोन ब्लेड्स का अभी भी यूज़ होता है, पॉट्स का यूज़ होता है. तो अगर इससे कुछ भी रिजेंबल करता हुआ वहाँ से मिल रहा है तो वी कैन अज्यूम कि ऐसा ही काम उस टाइम भी उन चीज़ों से किया जाता होगा. Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it was found, whether it was found in a house, in drain, in grave or in a kiln. तो आर्कियोलॉजिस्ट जो वन मोर थिंग जो वो देखते हैं कि वो जो चीज़ उन्हें मिल रही है वो कहाँ से मिल रहा है. किसी ड्रेनेज से मिल रही है, किसी हाउस से मिली है, किसी ग्रेव से मिली, कहाँ से वो चीज़ मिल रही है. क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर जगह से कोई चीज़ मिल रही है तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो वहीं कहीं के यूज़ होगी. लाइक अगर किचन के मटेरियल से हमें कोई चीज़ हमें मिली किचन से तो वी कैन अज्यूम कि किचन में यूज़ की जाती होगी. अगर कुछ ड्रेनेज से मिल रहा है तो उस वहाँ पर यूज़ किया जाने वाला कोई चीज़ होगा. तो इन सब पर आर्कियोलॉजिस्ट को डिपेंड रहना पड़ता है. The problem of archaeological interpretation are perhaps most evident in attempts to reconstruct the religious practices. Okay? तो हड़प्पन्स की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हम कैसे डिसाइड करते हैं? मीन्स कोई गॉड थे, कोई गॉडेस थी, किन की वर्शिप उन्होंने किया या नहीं थे, हम कैसे कह सकते हैं? तो जो ये प्रैक्टिसेस हैं ये तो रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस आर मेड बाय एग्जामिनिंग सील्स, some of which seems to depict ritual scenes. Other with plant motifs are thought to indicate nature worship. मीन्स जो भी हमें सील्स में मिले हुए हैं लाइक कोई एनिमल का पिक्चर मिल गया या कोई राइचुअल सीन बना हुआ मिलता है, उसके बेसिस पर हम कुछ सोचने का कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा हड़प्पन्स में. या अगर कोई हमें प्लांट मोटिव मीन्स प्लांट किसी पौधे का साइन मिला हुआ है तो हम ये सोच सकते हैं कि वो नेचर की वर्शिप करते होंगे. Many reconstruction of Harappan religions are made on the assumption that later tradition provide parallels with earlier ones. This is because archaeologists often move from the known to the unknown, that is from the present to the past. Like अगर present में हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसको हम past से resemble कर सकते हैं. Suppose we can take the example of Lord Shiva. Still we worship Lord Shiva, and one statue which we find from the Harappan civilization, it also resembles with the Lord Shiva. तो we can say कि Lord Shiva की worship वो लोग करते थे. The discovery of pots, coins, beads, etc. in the Harappan sites and their graves provide enormous information. Traces of cotton and dresses depicted on seals and sculptures gives an idea about the dressing style of the Harappan people. तो जो भी सील्स पर या स्कल्पचर्स पर अगर कोई भी स्टैचू बना हुआ मिला हुआ है, किसी की पिक्चर बनी हुई, तो अगर वो क्लॉथिंग किए हुए तो फ्रॉम दैट वी कैन टेक आइडिया कि हाउ दे मेड देयर
ड्रेसिंग स्टाइल्स। जैसे एक एग्जाम्पल है द टेराकोटा फिंगरिंग्स ऑफ वुमेन indicate the worship of mother goddess. Plant motifs seem to suggest the practice of nature worship. The conical stones indicate linga worship. तो जैसे कि वुमन का पिक्चर हमें मिला हुआ है टेराकोटा से बना हुआ, तो उसको वी कंसीडर द मदर गॉडेस। एंड जो प्लांट मोटिव हैं, जो भी प्लांट के साइंस कहीं भी मिले हुए, तो वी कैन कंसीडर कि दे वुड हैव वर्शिप्ड नेचर। एंड कॉनिकल स्टोन्स मिले हुए हैं, जैसे कि अभी भी हम इन प्रेजेंट सिनारियो वी वर्शिप द शिवलिंगा। तो जो दैट कॉनिकल स्टोन्स, उनको हम रेफर करते हैं कि वो उस टाइम पर भी ऐसे ही एज अ शिवलिंग वर्शिप किया जाता होगा उनकी। In some sales, a figure shown seated cross-legged in a yogic posture, sometimes surrounded by animals, has been regarded as depiction of proto-Shiva. जैसा अभी मैंने बताया, मीन्स एक सील पे एक पिक्चर बना हुआ है जो एक योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है अपने क्रॉस लेग्ड पोजिशन में, जिसके सराउंडेड में एनिमल्स हैं। तो दैट इज़ एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डाइटीज ऑफ हिंदुइज्म, जो कि लॉर्ड शिवा हैं। उस टाइम भी ऐसा मिलता है, तो वी कैन रिलेट कि आज भी जो लॉर्ड शिवा हैं वो लाइक ही हैज़ स्नेक इन हिज नेक, सॉरी ऑन हिज नेक, एंड जो वो स्किन टाइगर स्किन का जो उनका क्लॉथिंग है, एंड द बुल अराउंड हिम। तो उस टाइम भी ऐसे जो एनिमल से सराउंडेड पिक्चर मिली हुई योगिक पोस्चर में, तो उसको हम लॉर्ड शिवा के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। सम एनिमल्स सच एज द यूनिकॉर्न डिपिक्टेड ऑन सील सीम्स टू बी मिथिकल कंपोजिट क्रिएचर्स। कई बार हम ये भी रिलेट करते हैं कि वो कुछ मिथिकल या कंपोजिट क्रिएचर्स में भी बिलीव करते होंगे। द टू इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर द फायर अल्टर्स फाउंड एट कालीबंगन एंड लोथल। जैसे आज के टाइम पर फायर अल्टर होते हैं, ऐसे ही कालीबंगन एंड लोथल से भी फायर अल्टर्स फाइंड आउट किए गए। द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो समथिंग मीन्ट फॉर राइचुअल यूज। वी नो कि मोहनजोदारो से ग्रेट बाथ मिला हुआ है, तो वी कैन अज्यूम कि कुछ ऐसा राइचुअल वो लोग मनाते होंगे जिसमें से कि ना बहुत सारे लोग एक साथ नहाते होंगे। लाइक वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट डेज कुंभ, द फेस्टिवल ऑफ कुंभ, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ बात करते हैं। मीन्स जो हमारी हॉली रिवर्स है उनमें नहाने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही कुछ हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदारो में मिला है, मे बी वो भी आज के टाइम जैसा ही कुछ किसी राइचुअल प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ किया जाता होगा। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी विल कंक्लूड द चैप्टर। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, फर्स्ट चैप्टर। नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, and stay home and stay safe. Thank you everyone.